हेलो गाइस, आई एम भरत एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम क्या करेंगे यार, आज हम कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। दिस इज फॉर द दोज कैंडिडेट्स, दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए आल्सो। So this is the solution of NDA 1, that is the April session 2014 mathematics solutions. The uh, paper was always similar. NDA का पेपर कभी भी बदलता नहीं है, एक जैसा ही पेपर आता है और उसके टॉपिक्स भी सबको पता होते हैं। बट द थिंग इज यू हैव टू सॉल्व इट इन द गिवन टाइम, 120 क्वेश्चंस एंड 2.5 hours. दैट इज डिफिकल्ट फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट। तो आज हम इसी पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द सॉल्यूशंस ऑफ इट। So let's get started. Okay, this is the instructions of that paper. Uh, Maximum marks, as you all know, if you are preparing for NDA, then maximum marks is 300 for the mathematics paper, and you have to score a minimum marks set by the UPSC, so that you can your GAT पेपर शुड बी चेक। अगर आप मिनिमम मार्क्स नहीं लाओगे तो GAT का पेपर भी चेक नहीं होता। दिस इज द टेक्स्ट बुक सीरीज 1। The instructions, the similar instructions that every question has only one correct answer. Blah, blah, blah. So let's move to the questions. So here is the first question. What it says: let X be the set of all citizens of India. Elements X and Y in X are said to be related if the difference of their age is 5 years. Which one of the following is correct? तो इसने हमें कहा क्या है? इसने कहा है कि X is related to Y if the difference between them is equal to 5. Okay. So, and it is asking whether this is an equivalence, reflexive, symmetric, transitive, or what else. So, let's do the answer of it. For reflexive, letter number A. So, finding the difference of A to A, that is 0. Therefore, A is not related to A, therefore not symmetric. ये तो हम बाय वॉइस भी कर सकते हैं कि मतलब अपने हाथों पे कर सकते हैं कि ए से रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि ए और ए का डिफरेंस 0 होता है। तो सिमेट्रिक तो होने से, सॉरी सिमेट्रिक नहीं, रिफ्लेक्सिव, will be reflexive, not reflexive. Not reflexive. एंड अब हम दो नंबर्स को लेट कर लेते हैं, जैसे कि x एंड y को। इफ x इज रिलेटेड टू y, दैट इज x minus y is 5, then we also know that y minus x will also be 5, therefore y is related to x, therefore it is symmetric. एंड जो लास्ट पार्ट बढ़ जाता है, जैसे कि जो कि हम लेट कर लेते हैं एक्स वाई जेड, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5 if x is related to y, and if y is related to z, then y minus z should be equal to what? 5. But what we are seeing here is, if we have to relate x and z, then finding that we will get x minus y plus z, that is subtracting both the equations, we would get 0. Okay, and also not exactly subtracting. If we just add both of them, that x minus y plus y minus z, that will become 10. Therefore, x minus z is nothing but coming to 10. Therefore, x is not related to z. Therefore, not transitive. As is the at is. इतना आसान था ये। The relation is symmetric. तो हमारा जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो B है. The relation is symmetric, but neither reflexive and not transitive. So our answer is B. Let's move to the second question. What it says is, consider the following relations of A to B. A is U, V, W, X, Y, Z, and P, Q, R, S. तो आपको एक कंडीशन याद होनी चाहिए कि वो रिलेशन हम किसे कहते हैं, किसी भी फंक्शन को हम रिलेशन कब कहते हैं। रिलेशन तब कहते हैं जब जो उसका ये A is related to B में, that means the range, जो range में कोई भी वैल्यू बचनी नहीं चाहिए। And let me make the graph. What it says is A and this is B. So
This is U, V, W, X, Y, and Z, and here is P, Q, R, S. So neither of these four, इन सब में से किसी भी एक को बिना कनेक्टेड नहीं रहना है, बट हाँ ये वाले जो हैं वो दो से कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि ऐसे हो सकता है, दिस कैन बी ऑल्सो देयर, सो वी विल चेक फॉर दैट ओनली। फर्स्ट वी विल चेक द रेंज, रेंज में अगर पी क्यू आर एस नहीं है तो हम उसको वैसे ही रिजेक्ट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पी आ रहा है, पी आ रहा है, पी आ रहा है, क्यू है, क्यू है, क्यू है, बट नो आर एंड नो एस, सो देयरफॉर ये तो गया। अब अगला आता है यू, सॉरी, पी क्यू आर एस, ऑल द पार्ट्स ऑफ बी इज इन दिस फंक्शन, और आगे इसके होना या ना होना कोई जरूरी नहीं है, इसके सारे के सारे मैच्ड होने चाहिए, दैट इज बी के सारे के सारे वैल्यूज जो है मैच होने चाहिए रेंज के, तो हम उसको रिलेशन कहते हैं। सो दिस विल पास ऑन, एंड नाउ एस आर क्यू पी क्यू क्यू, मतलब we can say is P, Q, R and S. So this is also correct. Now checking the answers, here is 2 and 3. अगर आपने दो भी निकाल लिया, कि मतलब आपने दो को भी वो कर लिया, जज कर लिया कि हाँ ये तो रिलेशन होगा ही होगा, तब भी आप आंसर से टिक आराम से टिक कर सकते हो। हाँ एक जगह यहाँ फंसेगा, वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। So moving to the next question, what our next question is? Okay, moving to the third question. What it says is, if alpha and beta are the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then a is not equal to 0, then find a alpha plus b, a beta plus b is equal to। ओके, दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है पर हो जाना चाहिए, ऐसा सवाल है, तो हम चलो बना के देखते हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो क्या आता है, ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए बी अल्फा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना है, check out whether we are correct or not, a alpha beta b, a beta, okay, everything is correct. So we are going to find the what alpha and beta are the roots of the equation, then alpha plus beta should be equal to what, minus b upon a, and alpha beta should be equal to c upon a. Putting these values here, we will get, what we will get is alpha into beta, that is c by a square into c by a plus ab, alpha plus beta is minus b by a plus b square. It will be equal to, a would get deducted by a, that is ac minus b square plus b square is equal to ac. Our answer is C, that is AC. Okay, moving to the question number 4. What it says is, let S denote all the set of all integers. Define a relation R on S as A R B. If AB is greater than equal to 0, where A and B belong to S, then R is। okay, फिर से एक रिलेशन का क्वेश्चन आया है। रिलेशन बहुत ही मतलब आसान टॉपिक है, और इससे दो तीन क्वेश्चन दिख जाते हैं, तो इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि let S denote all the set of integers. Okay, S is the set of all integers, S belong to all set of integers. Find a relation R on S as A R B if AB is greater than equal to 0, where A and B belong to S. Okay, we have to, you know, AB is greater than equal to 0. तो मतलब जो कि S है, S पूरा का पूरा एक इंटीजर्स का सेट है, S denote all the set of integers, that means it will contain all positive and negative also, so we have to check for all। okay, तो फर्स्ट फॉर चेकिंग फॉर व्हाट, रिफ्लेक्सिविटी और नॉट, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, उसके लिए हम कोई भी एक नंबर मान लेते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। लेट्स टेक अ बोथ द एग्जांपल, पॉजिटिव नंबर एंड माइनस नंबर, दैट इज +1 एंड here -1। so if what it is saying AB is greater than equal to 0, एंड यहाँ पर हम जो लेते हैं वो A को रिलेट करते हैं, A को रिलेट करते हैं किससे, A से, तो +1 इंटू +1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा, 1। So in both the cases, the value is greater than equal to 0. AB is, sorry, AA is greater than equal to 0. Therefore, we can say A is related to A and it is reflexive। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस भी चेक करने हैं, जैसे यहाँ पे देखना है, रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट। तो ओके, कोई आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा देखते हैं। कभी कभी आंसर मिल जाता है तो ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। Let's move to the next part, that is how we will check for the symmetricity। okay, if A is related to B, that is अगर A B greater than equal to 0 आ रहा है,
तो क्या b रिलेटेड टू a नहीं है? तो यहाँ से साफ ही दिख रहा है b a will also be greater than equal to 0. Nothing has to be changed here. So this is symmetric also. Now checking for the transitivity. Okay, जैसे लेट्स चेक फॉर द ट्रांसिटिविटी. अच्छा, एक बात यहाँ से एक और क्लियर होती है कि अगर इस रिलेटिविटी होने के लिए या तो दोनों नंबर्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा या दोनों नंबर्स को नेगेटिव होना पड़ेगा, है ना? तो हम क्या करेंगे, अब ट्रांसिटिविटी चेक करनी है तो हमको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा. जैसे कि अगर a रिलेटेड टू b है एंड b रिलेटेड टू c है, व्हाट विल बी आवर आंसर? दैट इज ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा होगा, है ना? और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने के लिए या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे. ओके, एंड बी सी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा होगा, तो यानी कि तीनों के साइन तो सेम ही होंगे, है ना? तो हमारा जो ए सी हम निकालेंगे, ए सी मान लो अगर ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, दोनों फिर से पॉजिटिव आएंगे. और अगर दोनों पॉजिटिव हैं तब भी ये पॉजिटिव ही आने वाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. कभी भी 0 से नेगेटिव नहीं आएगा. तो यस, दिस इज ट्रांसिटिव ऑल्सो. दिस इज ट्रांजिटिव ऑल्सो. तो हमारा आंसर क्या बनता है? एन इक्विवेलेंस रिलेशन. वेरी इजी क्वेश्चन, बट वी हैव हमको पूरा चेक करना पड़ा, थोड़ा सा लेंथी पड़ गया, बट कोई नहीं. ओके, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इट सेज इज the roots of the equation 2a square x square minus 2 okay 2a square x square minus 2abx plus b square is equal to 0 when a is less than 0 and b is greater than 0 are. ओके, तो हमें इनके रूट्स के बारे में कमेंट करना है. एंड रूट्स के बारे में कमेंट करने का सीधा सा जरिया हमारे पास क्या है, हम डी निकाल लेते हैं. ओके, व्हाट वी विल डू इज फाइंड द डी. we will use this one. Okay, 2a square x square minus 2abx plus b square. ओके, फाइंडिंग द डी. डी विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है. तो यहाँ पे बी स्क्वायर क्या है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, बी स्क्वायर इज दिस वन. ओके, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a क्या है अपने पास, 2a स्क्वायर है, एंड c इज b स्क्वायर. ओके, व्हाट वी आर गेटिंग इज minus 4, here will become 8a square b square. And this is saying that a is less than 0 and b is greater than 0. इसका कोई यूज ही नहीं निकलता क्योंकि a स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा और b स्क्वायर जो है वो भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा. तो हमारे पास क्या बच गया, ये नेगेटिव आ रहा है, यानी d is less than 0. So if d is less than 0, then that means they are no the both of the solutions of this are complex. Always complex means okay, it is asking that whether it is sometimes complex or not. So the answer is always complex. Always complex. It will give always complex solutions only. Okay, moving to the question number 6. We are having question number 6. What it says is, it is a question of binary. ऐसा देखा क्या गया है, ये हमेशा ही आता है. एक टू मतलब इस ये वाला जो क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन एक बार एक तो आता ही आता है. यानी कि जो ऐसा क्वेश्चन है जैसे कि आपका ये दे रखा है, इसको इन दोनों का सम निकालना है. डायरेक्टली इसका सम निकाला नहीं जा सकता, तो हमको क्या करना पड़ता है, पहले इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना पड़ता है. ओके, तो व्हाट इट इज रिटन इज 110. हाउ टू चेंज इट इन डेसिमल फॉर्म. डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 1 into 2 to the power 1 plus, okay, 4 ones are there, 1 into 2 to the power 2 plus 1 into 2 to the power 3. Okay, okay, one more, 1 into 2 to the power 4, that is 2 to the power 4 is 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. Okay, adding all of these we will get a 16 33. Okay, this is 33, this is equal to 33. And now finding the second one, and that is 1010. So this is how we change this binary to decimal and decimal to binary. Both of these can be done. Okay, 1 into 2 to the power 3 plus 0 into 2 to the power 2 plus
1 into, okay, we done a mistake here. 0 is multiplied, so this will be 0. Okay, 6, 14, 14 and 16 is 30. गलती हो जाती है, जल्दबाजी नहीं निकालनी कभी भी. ओके, 2 plus 0 into 2 to the power 0, that is 8, plus 0 plus 2 plus 0, that is 10. Okay, now we have to find the sum of it. Okay, finding the sum. The sum will come what? Sum will come to be 40. Now we have to change this again to the binary form. And for changing to binary form, what we will do is we will do 40. Okay, let me erase that sum. I will erase this part क्योंकि हमने calculate कर लिया है. Now we have got the sum 40. What we have to do is we have to change this 40 to again this binary form. To change 40 to binary form, we will divide it by 2, that is 20. Now again by 2, that is 10. Now again by 2, that is 5. Now again by 2, and this is giving us 2. यहाँ पे कितना बच गया? 1 बच गया रिमाइंडर. Okay. Now again by 2, that is 1. Okay. Here it is giving remainder 0. Here 0. Here 0. So what we are getting is 1 0 1 0 0 0. Now we can also check by solving it. That is 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5. By solving it, we will getting 2 to the power 5, 2 to the power 3. That is 32 plus 8. That is 40. So our answer is this: 101 000 101 000 2. That is answer A. It took some time, but मेरे को ये समझाना था आपको, इसीलिए ज़्यादा टाइम लग गया. अगर आप खुद से करोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार आप सीख जाओ तो. Okay, moving to the next question, that is question number 7. What it is saying is, let n denote the set of all non-negative integers and z denote the set of all integers. The function f z to n given by fx is equal to mod x is. Okay, so we have been given हमको क्या दे दिया गया है कि हमको रेंज दे दिए, सॉरी, डोमेन दे दिए, रेंज दे दी है. ओके, एंड वी हैव टू फाइंड वेदर इट इज 1 1 और ऑन टू. इस प्रकार के सवाल भी बहुत कॉमन है, और ये आते ही आते हैं. अगर आप 1 1 एंड ऑन टू छोड़ के जा रहे हैं तो मतलब आप अपना एक नंबर कटवा रहे हैं, एक या दो नंबर, जो भी एक या दो क्वेश्चन तो कटवा ही रहे हैं. सो व्हाट इट इज गिविंग इज एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स. अगर आपको ग्राफ पता है इसका तो वैसे भी बहुत आसानी से हो जाने वाला है. क्यों हो जाने वाला है कि ग्राफ हमको पता है कि इसका ऐसे होता है. ठीक है, और इन्होंने जो डोमेन दिया है वो z दिया है, z यानी कि ऑल इंटीजर्स. ओके, ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव इंटीजर्स. और जो रेंज दी है वो दी है खाली पॉजिटिव एन दी है. तो उस वैसे भी हमें उसका कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें नेगेटिव में तो इसकी वैल्यू जाती नहीं है ना. ऊपर यू कैन इजिली सी, नाउ यू कैन इजिली सी इफ आई कट अ line here, draw a line here, that it is a many one function. Okay, so it is not 1 1, not 1 1. So this option got cut out, this also got cut out, and we are left with this, not 1 1 and neither. Okay, let's check for the onto function. Onto, we say, हम किसको कहते हैं onto function? Onto function वो होते हैं इनका range is equal to codomain होता है. Okay, and this is our codomain, this is our codomain, and we are seeing here, what we are seeing this, its range is from 0 to infinity. These are all natural numbers. Okay, we are there is it is also written integers, not included 0 here. Therefore our answer is true. मतलब ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है. ये this is 1 1, range is equal to codomain, and this is 1 1 but not all. Going to the question number 9, what it says is, let z is equal to x plus iota y, where x and y are the real variables in this. तो पहले पहले आप जब इस क्वेश्चन को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पर ऑप्शन में स्ट्रेट लाइंस है नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं. या फिर अगर आपको इक्वेशन याद है, इक्वेशन देख के पता चल जाता है, तो वो भी आसानी से कर सकते हो.
बट अच्छा ये रहता है कि आप इसको सॉल्व कर लो। तो गोइंग टू सॉल्व इट। Let's solve it. Let n z is equal to x plus iota y. The 2x plus 2 iota y minus 1. It's written mod here. So be careful while writing this. Okay. 2x minus 1 to the power whole square plus 4y square under root is equal to x minus 2 whole square plus y square. Okay, squaring both the sides, what we are getting is 4x square plus 1 minus 4x plus 4y square should be equal to x square plus 4 minus 4x plus y square. Deducting both the sides, 3x square plus 3y square is equal to 3. That is x square plus y square is equal to 1. So surprisingly, it came out to be a circle equation. So this is an equation of circle. Very smart question. If we go, अगर आप पहले देखते तो ये ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई एक्लिप्स या फिर हाइपरबोला की इक्वेशन है, लेकिन निकल के क्या आती है, एक सर्कल की इक्वेशन। So guys, moving to the question number 10, what it says is the sum of an infinite GB is 10 and the common ratio is R. If such is such that there that is mod of R is less than 1. If the sum of the okay, the first term is GP is 2, then which of the following is correct? So very easily we can find is A upon 1 minus R is equal to X, and A is given to us, that is 1 minus 2, R is X. Also one thing is also given to us, that mod R is less than 1, so therefore R is less than 1 and greater than minus 1, तभी तो ये होगा, है ना। तो ये तो बात बड़ी आसान सी है। अब हम क्या करते हैं, माइनस आर में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। माइनस आर में करने के लिए ओके, नाउ एडिंग 1 to both side, that is 2 less than 1 minus r, that is 0. Okay, inverting the both of these, that is 1 by 2 less than 1 by 1 minus r infinity. Now multiplying by 2 both sides, 1 less than, that is 1 upon, okay, 2 upon 1 minus r infinity, that is 1 to x is belonging to 1 to infinity, that is our C option. Now moving to the question number 11, a box contains 3 white and 2 black balls. 2 balls are drawn at random, one after the other, and if the balls are not replaced, what is the probability that both the balls are black? Okay, a box is given to us, and this box contains 3 white and 2 black balls. Okay, two balls are drawn at random, one after the other. If the balls are not replaced back, what is the probability that both the balls are black? Okay, so we have to find the probability of both the balls that black. A very easy question this is. So let's take the case when, so getting a black ball in the first run, that is one, that will be equal to 2 upon 5, and getting it again, अगर पहले में निकल गई बॉल ब्लैक, तो अब यहाँ पे कितने बच जाएंगे, यहाँ पे बच जाएंगे 3 वाइट और एक ब्लैक बच जाएगा। और प्रोबेबिलिटी क्या बच जाती है निकलने की, दैट इज बी इक्वल टू 1/4, दैट इज 2 अपॉन 1/10, that will be our C answer. Okay, moving to the question number 12, what it says is for two variables x and y, the two regression coefficients are byx is equal to -3/2 and bxy is equal to -1/6, the correlation coefficient between x and y. तो ये जो क्वेश्चन है, ये बिल्कुल भी 12th में नहीं आता है, मतलब 12th के सिलेबस में नहीं है इंक्लूडेड।
अगर कोई बच्चा 12th के लिए पढ़ता है तो उसको ये, अगर एनडीए का पेपर देना है तो ये एक्सक्लूसिवली पढ़ना पड़ता है ये टॉपिक। एंड दिस वन आल्सो द वेरिएंस ऑफ द एक्स नंबर्स एंड, ये तो फिर भी हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को अभी लीव करेंगे, लीव इसलिए करेंगे क्योंकि अभी मैं अगला एक और वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें हम ऐसी कुछ कुछ टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, उसके बाद उसी उसी के प्रैक्टिस सेट में हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। ओके, गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, द वेरिएंस ऑफ नंबर्स x1 x2 x3 xn is v। okay, variance is v। uh, well, consider the following statements. If so every xi is increased by 2, the variance of the new set of numbers is v। if the number xi is squared, the variance of the new set is v square। okay, so what is our variance? Anybody? So this is variance. Variance is minus sigma xi by n का square। okay, this is variance, है ना, ये वेरिएंस होता है। और अब इन्होंने क्या कहा हमसे कि ये हमें गिवन है पहले से कि मतलब v ऐसा है, बट इफ xi इज इंक्रीज बाय 2, अगर सबको 2 से इंक्रीज कर दिया जाएगा तो क्या होगा? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इफ xi इज इंक्रीज्ड बाय 2, देन मीन पे क्या फर्क पड़ेगा? मीन पे क्या फर्क पड़ जाएगा? तो अगर पहले मीन x डैश था तो अभी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। द वेरिएंस ऑफ द न्यू सेट ऑफ द नंबर्स इज v। इट इज आस्किंग कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन से क्वेश्चन करेक्ट है, मतलब कौन सा ये सही लिखी हुई है। और जो अपना ये है, ये एक्स आई का स्क्वायर जो है, इस पे क्या फर्क पड़ जाएगा? इसमें भी बहुत फर्क पड़ सकता है, पड़ेगा। एवरी नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 2, दैट इज x1 plus 2 whole square, 2 plus 2 whole square, and so on, and divided by n, minus what we are doing is sigma xi by n प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये कर रहे हैं हम, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे कि देखो देखो, if we generally simply solve it, then it will give us simply xi का स्क्वायर अपॉन n प्लस 2 स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा, दैट इज n टाइम्स, एंड इट विल गिव अस 4 प्लस 2 into, that is 4 into xi, that will give us 4 sigma xi upon n। now minus, we are doing the minus sigma xi upon n whole square प्लस 4, सॉरी प्लस नहीं, माइनस हो जाएगा, माइनस 4 माइनस ऑफ 4 सिग्मा xi upon n, subtracting this get deducted, this get deducted, this get deducted, and we are again with v, so this part is correct। checking for the number, if the numbers xi is squared, then variance of the new set is v square। oh, now this is very interesting part, every number is being squared, so if every number is squared, what will be the new variance? The new variance will be like this, every number is being squared, so this will become xi to the power 4 upon n minus, this will be the part, okay। And now solving it, what we will get is, we will get sigma xi square upon n to the power whole square, that's not interesting। तो ये हमें क्या दिख रहा है, सिग्मा एक्स आई की पावर 4 अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन का होल स्क्वायर दिखाया जा रहा है। ये क्या कभी भी v के बराबर आएगा? ये न्यू वेरिएंस है, ये न्यू वेरिएंस है, ये कभी भी v स्क्वायर के बराबर आ सकता है क्या? क्योंकि हम जब v स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे, ये जो हमारे पास v था,
कि वी स्क्वायर क्या आएगा, वी स्क्वायर वुड बी सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन टू द पावर होल स्क्वायर, ओके, एंड प्लस सिग्मा एक्स आई बाय एन टू द पावर 4 माइनस 2 सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, एंड वेरी अलग अलग चीजें आएंगी, पर ये दोनों कभी भी सेम हो सकते हैं क्या, बिकॉज इट इज गेटिंग अ टर्म ऑफ 4, वी कैन नेवर इक्वेट देम, therefore only first part is correct, second one is wrong, so our answer is 1 only. Moving to the question number 14, what this says is what is the mean of the squares of first 20 natural numbers? That is very easy question. Mean of first 20 natural numbers, mean of the squares of first 20 natural numbers. If we know the equation, or we can say the sigma x I square, इसका समीशन क्या होता है, n into n plus 1 to 2n plus 1 upon 6. That's very easy. Okay, it is asking for 20 natural numbers. We give it 20, 21, 41 upon 6, that is 3, 7, 10, that is 17 to 41, that is 4, 7, 7. What is the mean of the squares of the first 20 numbers? Okay, mean, it is asking for a mean. This will be divided by n only, so this will be divided by n, that is 20. Dividing it will give 143.5, that is. Moving to the question number 15, P, Q, R, S, T are 5 numbers such that average of P, Q and R is 5 and that of is S and T is 10. Okay. Okay. Average of P, Q, R, and P plus Q plus R upon 3 is 5 and S plus T upon 2 is 10. What is the average of all the 5 numbers? That is very easy यार, मतलब इतना आसान नहीं हो सकता क्या, 15 प्लस 20 अपॉन 5 that is 35 upon 5, that is 7. C part. Okay, the cumulative frequency of the largest observed value must always be, the cumulative frequency of the largest observed value must always be less than the total number of the observations, greater than the total number of observations, equal to the number of observations, equal to the midpoint of the last class of the interval. The cumulative frequency of the largest observed value. Okay. तो इन्होंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछा है, किसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ना पता हो तो होता क्या है कि जैसे हम कोई भी टेबल बनाते हैं, हमने क्लास लिखा, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखी और यहाँ पे सी एफ लिखा मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे अगर अलग वेरिएबल या फिर सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, कि 2 हो गया या 7 हो गया, और यहाँ पे जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ तो 5 ही आ जाता है, बट नेक्स्ट में हम दोनों का एडिशन लिखते हैं, दैट इज 7, और फिर अगले वाले का एडिशन लिखते हैं, दैट इज 14. These are the cumulative frequency table. So cumulative frequency of a largest observed value must always be greater than the total number of observations, equal to the total number of observations, equal to the, it should be equal to the total number of observations, never greater than that. Moving to the question number 17, it has been found that if A play a game 12 times, A wins 6 times, B wins 4 times, and they draw twice. A and B take part in a series of 3 games. The probability that they will win alternatively is, okay, that they will win alternatively. थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो वी आर गिवन अ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, दैट इज क्या दे रखा है हमको, पी ऑफ ए, ये हमें दे रखा है कि कितनी बार ए जीतेगा, ए के जीतने के चांसेस कितने हैं, 6/12, दैट इज 1/2. पी ऑफ बी, पी ऑफ बी इज गिवन टू अस, दैट इज 4/12, दैट इज 1/3. Now it is given to us P of C. Okay. No, no C. P of draw. Draw is 2/12, that is 1/6. Draw के chances सबसे कम है. Okay. And they are playing a series of 3 games, and we have to find that they should win alternatively. So what do you mean by winning alternatively? Either it should be like this: A, B, A. First A wins, then B wins, and again A wins. Or it should be like B, A, B. B, A, B.
Okay, both the probabilities can be there. So we have to add both of these probabilities. So we for finding the cumulative probability, what we will do is I have to erase something. Let's erase this. Let's okay. Let's solve the question here. Okay. First, if A is winning, the winning probability of A is the winning probability of A is A plus B A B. The winning probability of A is 1 by 2 into the winning probability of B. It is 1 by 3. Now again 1 by 2 plus winning probability of B is 1 by 3 into 1 by 2 into 1 by 3. So getting what we are getting is 12 plus 1 upon 18. Okay, into 18. Taking the LCM of 12 and 18. LCM ले लेना है 36, 3 plus 2, that is 5 upon 36, and it is our answer B. Moving again, moving to the next question, that is question number 18. What it says is, out of the 7 consonants and 4 vowels, words are to be formed by involving 3 consonants and 2 vowels. The number of such words formed is okay. 7 consonants हमें दे दिए गए हैं, 4 vowels दे दिए गए हैं, and words are to be formed using 3 consonant हमें यूज करने हैं और 2 ही vowels हमें यूज करने हैं. बहुत ही आसान सवाल है. हम 7C 3 चूज करेंगे, and first we will choose the consonants and then we will choose the vowels, that is 4C2. एंड जो कि हमको कितने वर्ड का बन रहा है ये नंबर, दैट इज इट इज 5 वर्ड्स. तो हम इनको 5 वेज में अरेंज भी कर सकते हैं. दैट इज 5 फैक्टोरियल, नॉट 5 वेज में हम इसको अरेंज भी कर सकते हैं. तो फाइंडिंग द वैल्यू 7 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. 4 factorial gets divided by 4. This will give us 4. This will become 7 factorial into 5 factorial by 24. Okay. This gets divided by this. We are left with easy part. 725 into 24. We will be getting what? You can solve or 0. That is our answer. Okay. Moving to the next question. What our next question is? Okay, moving to the question number 19. What it says is, let x denote the number of scores which exceed 4 in 18 tosses of a symmetrical die. Consider the following statement. The arithmetic mean of x is this. The standard deviation is this. तो पहली बार इक्वेशन एक बार में पढ़ के समझ नहीं आता है ना. और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक्चुअली दिस इज एन इजी क्वेश्चन. व्हाट इट इज सेइंग दैट हमको 18 बार एक सिमेट्रिकल डाई है उसको थ्रो करना है. ओके, सिमेट्रिकल सिंपल डाई उसको हमको 18 टाइम्स थ्रो करना है. एंड वी हैव जो x है, जो उसकी मतलब x जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो अकरेंस है, जो x है जब एक नंबर 4 से ग्रेटर आता है, तो p ऑफ x कितना हो जाएगा? p ऑफ x वुड बी 2/6. दैट इज, क्योंकि दो ही नंबर हैं जो 4 से बड़े हैं, जो कि 5 एंड 6 जो आ सकते हैं, दैट इज 1/3. एंड q इज व्हाट? q इज दैट इज 1 minus p, that is 2/3. Now the arithmetic mean. If you know the formula, mean is arithmetic mean is PQ. Okay, not PQ, it's NP. NP, that will be equal to 18 into 1/3, that is 6. That means it is correct. Now the standard deviation. Standard deviation is under root of variance.
and variance is NPQ, that is under root of 6 into 2 upon 3, that is under root 4, and that is 2. This is also correct. So our answer is C. Coming to the question number 20, what it is saying, the how many words can be found by taking the four letters out of the words again if each word has to start with A. ओके, ए को हमने फिक्स कर लिया, हमारे पास कितने वर्ड्स बच गए, चार वर्ड्स बच गए हैं. हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग फोर लेटर्स ऑफ द वर्ड. ओके, हमको इसके चार ही लेटर लेने हैं, एक लेटर तो हमने पहले ले लिया, तो हमारे पास कितने बच गए, फोर बच गए हैं, है ना. एंड डिफरेंट वर्ड्स वी हैव टू फाइंड. ओके, डिफरेंट वर्ड्स वी हैव टू फाइंड. each word has to start with a फोर लेटर वर्ड्स बनाने हैं, तो हम 4C थ्री वेज में उनको सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद 3 फैक्टोरियल वेज में हम उनको अरेंज भी कर सकते हैं. तो हाउ व्हाट विल बी गिवन 4 फैक्टोरियल upon 3 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल, that is this gets deducted and we are left with 4 into 6, that is 24, and our answer is C. Moving to the question number 21, the sum of the series formed by the sequence 3 root 3 1 and up to infinity, then that means it is getting divided by the, this is GP. जो ये हमारे को सीक्वेंस दे रखा है वो एक जीपी है, जिसका जो आर है वो 1/√3 है. ओके, द आर इज 1/√3 and we have to find the sum of the series up formed by the sequence 3 root 3 and this up to infinity. For finding the sum to applying the equation, that is s upon a 1 minus r, the r has to be from 0 to 1 and ये हमें चेक करना पड़ेगा आर वन 0 से 1 के बीच में है कि नहीं है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो हम लगा सकते हैं. तो नो प्रॉब्लम हियर, वी आर गेटिंग 3 upon 1 minus 1 upon √3, that is 3 √3 upon √3 minus 1. अगर इसको वो कर लिया जाए, रेशनलाइज कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. 3 minus 1 is 3 √3, 3 √3 plus 1 upon 3 minus 1, that is 2. 3 √3 into √3 plus 1 1 2, that is our A answer. Now going to the next part, that is 2. Z plus Z bar whole modulus is equal to modulus of Z minus Z bar, the locus of Z is. तो इसका करने का अगर आपको याद है तो आप उससे भी कर सकते हो, नहीं तो एक सबसे आसान तरीका क्या है कि हम इसमें वैल्यू Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई डाल करके इक्वेशन ही निकाल लेते हैं, तो ज़्यादा कोई दिक्कत बचती ही नहीं है. एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई होल मॉड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई minus x plus iota y mod. So the here it will give what 4x square and here it will giving 4y square, it is like this. Then 2x should be equal to plus minus 2y. So these are a set of a pair of straight lines. Okay, these are pair of straight lines. Two straight lines will be there, not a set of four. Four straight lines क्यों नहीं होंगी, four straight lines इसलिए नहीं होंगी, somebody can say that both sides we will get to plus minus. then उसमें क्या होगा उस केस में, जब दोनों प्लस होंगे और दोनों माइनस होंगे या वन माइनस और वन नेगेटिव होंगे, वो तो दोनों सेम ही वैल्यूज आएंगी ना, इसीलिए हमारे पास एक पेयर आएगा ना कि एक सेट आएगा. Moving to the question number 23. Okay, we have to change this into decimal system to expressed in binary system. अच्छा, इस changing the 251 to binary system 2, that is giving 1 again 2, that is 62 again 1 2, that is 3 1. Okay, we can check from the back side. और यहाँ पर यहाँ तक अगर कर लिया तो इसके बाद भी सीधा तुम बी को टिक कर सकते हो, पर हम पूरा निकालेंगे क्योंकि मैच हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है. पूरा कर दिया 1, that is giving again 1 2 6 again 1 2
1. Okay, so we are matching. यही आ रहा है आंसर. This answer is B. Moving to the question number 24. What is the argument of the complex number 1 plus iota, 2 plus iota? तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि आप सीधा फटाफट मल्टीप्लाई करते चले जाएं और ज़्यादा कुछ ना सोचें. ना सोचोगे उतना टाइम खाएगा ये. 1 plus 3 iota upon 3 minus iota. Now resolve these two. रिजॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है? 3 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है. फिर से कर देंगे हम 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, नीचे भी कर देंगे 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर, दैट इज 10. ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा 3 माइनस 3 प्लस 10 आयोटा बाय 10, दैट इज आयोटा. ग्रेट. पूरा का पूरा रिजॉल्व होने के बाद हमारे पास आयोटा आ गया है और अब हमें निकालना है 10 इनवर्स y बाय एक्स. कम ऑन. तो हमने निकाला y जो है हमारे पास कितना है, y इज 1 एंड द मॉड इज 0, दैट इज इंफिनिटी, एंड ये आएगा कितना, पाई बाय 2 आएगा, एंड द आंसर इज डी. Moving to the question number 25, consider the following statements in respect of the matrix. The matrix is okay, and we have to check whether which of the following statements is correct. So this is the matrix. So it is clearly visible that this is a skew symmetric matrix. पहचान क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की? तो पहली बात ये जो सेंट्रल रो एलिमेंट है ये जीरो होते हैं. ओके, और इसी का नेगेटिव यहाँ है, इसी का नेगेटिव यहाँ है और इसी का नेगेटिव यहाँ है, मतलब कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो है. अगर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, अब स्क्यू सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक तो होगा नहीं, तो ये तो गया. ओके, द मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल. ओके, इनवर्टिबल है कि नहीं है? इनवर्टिबल होने के लिए जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए. ओके, जो इनवर्टिबल होने के लिए जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए. तो वी कैन फाइंड, और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो डिटर्मिनेंट जीरो होगा ही होगा, तो इनवर्टिबल भी नहीं होगा, दैट इज आंसर ए ओनली. दैट इज वन. ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 26. Consider the two matrices A and B. Which one of the following is correct? Right inverse. Okay. तो राइट इनवर्स और लेफ्ट इनवर्स का मतलब क्या होता है? राइट इनवर्स का मतलब ये होता है कि अब AB is equal to I, then B is right inverse of A, and if BA is equal to I, then B is left inverse of A. और अगर ये दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये बोथ साइडेड है ना. तो हम क्या करेंगे, ए बी निकाल लेते हैं. 1 2 1 1 1 1 2 2 1 minus 4 minus 4 5. तो यहाँ से तो साफ साफ दिख रहा है कि ये कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगा, है ना. तो राइट साइडेड इनवर्स तो होगा नहीं, और राइट साइडेड नहीं होगा तो बोथ साइडेड भी नहीं होगा, है ना. अब हमारे पास बच गया बी एंड डी. तो लेट्स चेक फॉर द लेफ्ट साइडेड इनवर्स, दैट इज बी ए. ओके, बी ए करा दो. 1 2 2 1 minus 4 minus 4, and here 1 2 2 1 1 1. Doing the multiplication बहुत ही पसंद नहीं है. 1, ओके, 1 plus 4 is 5, 5 minus 4 is 1. ओके, कुछ अच्छी सी फील आ रही है. 2 2 4, 4 minus 4 is 0. 2 2 4 minus 4 is 0. 4 plus 1, 5 minus 4 is 1. Okay, so we are getting our answer, that is I. So it is a left sided inverse of the matrix. Moving to the next question. Moving to the question number 27. One of the roots of this equation. Okay, we have to find the roots of this equation. One of the roots of this equation. And for this, एक तो तरीका ये है कि हम सीधा वैल्यूज पुट करके देख लें, द इजीएस्ट वे, जिससे ये जल्दी भी हो जाएगा थोड़ा सा. और एक तरीका और है कि हम इसको सॉल्व करें पूरा. तो वी विल बी सॉल्विंग इट. ओके, तो दिस वी विल, हम यहाँ से ही कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं, सीधा सीधा कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं. दैट इज C1 is C2 plus
C1 प्लस C3 है ना, और ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, बी एक्स प्लस बी, बी सी सी सी। अब यहाँ से हम इस पूरे के पूरे को बाहर निकाल लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी एंड भी एक मैट्रिक्स होगा यहाँ, दिस इज इक्वल टू जीरो। और इन्होंने मुझे क्या पूछा, वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो हम इसी को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं और तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन ऑफ द रूट्स केम आउट टू बी minus of a plus b plus c, that is c is the answer. And moving to the question number 28, this is an oral question. If a is any matrix, then prove then the product a is defined only when a is a matrix of order. तो ये कब पॉसिबल है, a और a को कब मल्टीप्लाई कर पाओगे, अगर दो मैट्रिसेस जैसे कि कोई डिफरेंट मैट्रिसेस भी होती हैं, तो m क्रॉस n और l क्रॉस o, इसको हम कब मल्टीप्लाई कर पाते हैं, जब ये दोनों बराबर, दोनों सेम होते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करें, m क्रॉस n को m क्रॉस n से करा रहे हैं मल्टीप्लाई, तो m और n क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ओके, तो सी इज द आंसर। 29, the determinant of an odd order skew symmetric matrix, odd order skew symmetric matrix। अभी हमने पीछे भी देखा कि जो माइनस ए बी माइनस बी जो भी चीजें होती हैं, वन माइनस वन, तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमेशा जीरो ही होगा। जीरो कैसे होगा, अब मैं करके भी दिखा सकता हूँ। जैसे कि ए है, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो जो ए ट्रांसपोज होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ ए के बराबर होता है ना, माइनस ऑफ ए के बराबर होता है। अब दोनों के डिटर्मिनेंट क्या होने चाहिए, तो यहाँ पे जो दोनों साइड डिटर्मिनेंट निकाल देंगे हम, ये कितना है, तो टू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी ऑलवेज बी जीरो, अगर ये ऑड ऑर्डर का है तो। Okay, moving to the question number 30. If any two rows or columns of a determinant are interchanged in position, the value of the determinant, oh, that doesn't change, it will change its sign. अगर एक को करते हैं तो साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है डिटर्मिनेंट का। Okay, there is a paragraph question of three questions. This is in the survey of 25 students, it was found that 15 had taken mathematics, 12 had taken physics, and 11 had taken chemistry. 5 had taken mathematics and chemistry, 9 had taken and 4 had taken physics, chemistry, and 3 had taken all the three subjects. Find them. Okay, this is a question of Venn diagram. जब भी ऐसे मिक्सचर जैसे क्वेश्चन आते हैं तो वेन डायग्राम के ही होते हैं। सब्जेक्ट कितने पहले वो देख लेते हैं, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री भी है। ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम पहले तो स्क्वायर बना देते हैं बड़ा सा, है ना, और फिर इसमें बनाते हैं सर्कल। ठीक है, ओके, अगेन वन सर्कल, सो यू कैन सी वेरी वेल हियर। और क्या करना है हमें, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, और ये जो है अपना मैथ्स है। इन्होंने क्या बोला कि तीन बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट ले रखे हैं, तो वो यहाँ पर आएंगे, है ना। ऐसे भी बोला कि 12 हैव टेकन फिजिक्स एंड 11 हैव टेकन केमिस्ट्री, 5 हैव टेकन मैथमेटिक्स। टोटल टोटल जो बच्चे हैं वो कितने हैं, टोटल जो बच्चे हैं वो 25 है, दैट इज यूनिवर्सल, यू इज 25, है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन ओनली फिजिक्स, ये भी मुझसे पूछा जा रहा है, ओनली फिजिक्स वाली बात भी आ रही है। 5 हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों में से 5 ले रखे हैं। 9 हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, दैट इज 9, एंड 4 हैव टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड 3 हैं जिन्होंने तीनों ही सब्जेक्ट्स ले रखे हैं। अब इन्होंने कहा है कि 15 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स ले रखा है, 15 ने ले रखा है, 12 ने फिजिक्स ले रखा है, एंड केमिस्ट्री कितनों ने ले रखा है, केमिस्ट्री इज टेकन बाय 11 स्टूडेंट्स। तो वी हैव टू फाइंड, अब क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन ओनली फिजिक्स।
तो इन 12 बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने खाली फिजिक्स ले रखा है? ओके, 3 तो उन्होंने वैसे भी परस्यू कर रखे हैं। तो ये जो ये वाला सेक्शन बच रहा है हमारे पास, जिसमें 4 बच्चे आ रहे थे, इस पूरे में 4 जो आ रहे थे, उसमें से कितने बच गए? जो यहाँ पर खाली 1 बच गए। और इस वाले पूरे सेक्शन में जहाँ पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स लेने वाले, दोनों सब्जेक्ट लेने वाले 9 बचे थे, उसमें से 3 तो वो हो गए जिन्होंने तीनों ले रखे हैं। तो यहाँ पे कितने बच गए? 6 बच गए। और यहाँ पर जहाँ पर मैथ और केमिस्ट्री के जो टोटल बचे थे वो 5 थे, पर उनमें से 3 तो वो हैं जो कि जिन्होंने सब ले रखा है। तो कितने बच गए? दैट इज रिमेन्ड बाय 2 हियर। ना सब्ट्रैक्टिंग वी कैन गेट कि कितने एक्चुअली में फिजिक्स के रियल बच्चे हैं। जैसे कि माइनस माइनस 6 माइनस 3 माइनस 1, कितने बच गए? 6 माइनस 9 माइनस 10, दैट इज 2 2। सो आवर आंसर इज 2। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन ओनली 2 सब्जेक्ट्स। ओके, तो 2 सब्जेक्ट जिन्होंने ले रखे हैं खाली, वो कितने बचे हैं? 1 प्लस 2 प्लस 6, दैट इज 9। इजी। Consider the following statement: the number of students who have taken only one subject is equal to the number of students who have taken only two subjects. Okay, तो जिन्होंने only 2 ले रखे हैं वो तो 9 है। only 1 वाले कितने बचे? only 1 वाले यहाँ पर आपका 2 आ रहे थे। यहाँ पे कितने बचेंगे? यहाँ पे केमिस्ट्री लिया था 11 बच्चों ने, 11 में से 11 में से 6 जा चुके हैं, कि 5 बच गए। 15 बच्चों ने मैथमेटिक्स लिया था, 15 में से कितने बच गए आपके पास? 9 2 11, यानी कि 4 बच गए। तो टोटल जिन्होंने वन ओनली वन ले रखा है, ओनली वन सब्जेक्ट ले रखा है, वो कितने बचे हैं? 11। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो पहला वाला पार्ट तो रॉन्ग हो गया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एट लीस्ट 2 subjects is 4 times the number of students who have taken all the 3 subjects. all the 3 वाले तो 3 है, all the 3 वाले तो 3 सब्जेक्ट, 3 ही स्टूडेंट है। और जिन्होंने एट लीस्ट 2 ले रखे हैं, यानी कि 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। तो वैसे बच्चे कितने हैं? 2 और भी 3 वाले भी कितने हैं? 6 दूनी 12, दैट इज 12। एट लीस्ट वाले 12 बच्चे हैं। दिस इज ट्रू। ये वाला ट्रू है, ये वाला इक्वेशन ट्रू आ रही है, तो 2 ओनली विल बी द आंसर। ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 34। हमें क्या बोला कि एक एक्सप्रेशन दे दिया गया है और बोला गया है कि x टू द पावर 5 के कोफिशिएंट और x टू द पावर 10 के कोफिशिएंट का सम जो है वो 0 है। तो राइटिंग द इक्वेशन टी आर प्लस 1 इज एन सी आर एक्स क्यूब टू द पावर आर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर एन माइनस आर। एक्स टू द पावर 5 का जो केस है उसमें क्या होगा? उसमें जो -1 की पावर है वो कितनी बन रही होगी? मीन्स व्हाट आई एम सेइंग, गेटिंग टू से, उसमें जो कोफिशिएंट है वो क्या बन रहा होगा? कोफिशिएंट क्या बन रहा होगा? पहले हमें आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके लिए करना पड़ेगा 3r माइनस 2n प्लस 2r शुड बी इक्वल टू 5, दैट इज 5r शुड बी इक्वल टू 2n प्लस 5। r शुड बी इक्वल टू 2n प्लस 5 अपॉन 5। और x टू द पावर जो वो था, x टू द पावर 10 के केस में क्या हो रहा होगा? x टू द पावर 10 के केस में हो रहा होगा ये कि जो 3r दैट इज 2n प्लस 1, जो r2 आ रहा होगा वो आ रहा होगा 2n प्लस 10 अपॉन 5 आ रहा होगा। अब हो क्या रहा है? दोनों का समीशन जो है वो 0 आ रहा है ना? और यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो एक माइनस का साइन है वही सारा काम कर रहा है। इफ वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव देन ओनली द सम विल बी 0 ना। ओके, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? दोनों के कोफिशिएंट्स का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बट जो उनकी वो होगी, उनकी जो वैल्यू होगी वो अपोजिट साइंस के साथ होगी, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगी। तो हम क्या करेंगे? दोनों के दोनों को इक्वल रख देंगे, दैट इज एन सी 2n प्लस 5 अपॉन 5, इट should be equal to nc 2n plus 10 अपॉन 5। बहुत सीधा सा है। अगर ये, या तो ये दोनों सेम होने चाहिए तभी ये वैल्यू सेम हो सकती है, या फिर इन दोनों का सम जो है वो इनके बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? दोनों का सम कर देंगे। तो 4n प्लस 15 अपॉन 5 शुड बी इक्वल टू n, दैट इज 4n शुड बी प्लस 15 शुड बी इक्वल टू 5n एंड n शुड बी इक्वल टू 15। गुड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट टर्म? ओके, फॉर द इंडिपेंडेंट टर्म कौन सा होता है जिसमें कि एक्स मतलब वेरिएबल नहीं होता है ना? तो जो ये अपना आर आ रहा है, ओके, 3r माइनस 2n प्लस 2r शुड बी इक्वल टू 0, सो 5r शुड बी इक्वल टू 2n। ओके, तो कोफिशिएंट हमारा क्या बनेगा?
जो n c 2n by 5 and the value of minus 1 to the power 3n by 5. Okay, and the value of n is with us, that is 15 n की value, n factorial by 2n by 5 factorial 3n by 5 factorial and minus 1 to the power 3 into 15, that is 15. It will get deducted 3 minus 9. Minus will be there, minus sign will be there. So पहले दो को ऑप्शन तो अब n क्या है 15 फैक्टोरियल है, दैट इज 15 फैक्टोरियल माइनस ऑफ 15 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल to 9 factorial. Okay, so value will be 15 into 14 into 13 into 12 into, and after solving the answer would be coming to minus 5005. That is also number C. Option number C. Moving to the question number 36, what is the sum of the coefficients of the two middle terms? Okay, this question is literally lengthy and it will eat up your time. So make sure to avoid these types of questions in examination. Question number 36, what is the sum of the coefficients of the two middle terms? So as we got that the value of n is okay, the value of n is 15, so there will be two middle terms and the middle terms would be 8 and 9. 8 and 9 term. The summation of the 8th and the coefficients of the 8th and the 9th term, that is 15c for 8th term, 15c7 r, that it will give what it will give is 7 8. 8 will be giving that minus 1 to the power 8 plus 15c 8 minus 1 to the power 7. 15c7 minus 15c8, and we very well know that 15c7 is equal to 15c8 क्योंकि 7 और 8 15 होता है, तो ये तो जीरो ही आने वाली है. ये हो गया. Moving to the next question. Okay. फॉर द नेक्स्ट थ्री दिस इज द गिवन स्टेटमेंट. ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इसका फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो. देन फाइंड द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन. तो जैसे कि पता है हमें एन सी आर अपॉन एन सी आर प्लस वन जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है आर प्लस वन अपॉन एन माइनस आर. ओके, तो दैट इज इक्वल टू 1/2. और ऐसे ही जो अगला दे रखा है एन सी आर प्लस वन अपॉन एन सी आर प्लस टू, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आर प्लस टू अपॉन एन माइनस आर माइनस वन, दैट इज इक्वल टू 2/3. नाउ मेक द इक्वेशंस एंड सॉल्व देम. So what we will getting after solving 2r plus 2 is equal to n minus r, that is 3r is equal to n minus 2, and here it will be what will be getting is 3r plus 6. 3r plus 6 is equal to 2n minus 2r minus 2, that is 5r. 5r is equal to 2n minus 8. So this is the equation number 1, this is the equation number 2. When we solve it, we will get r is equal to 8 minus 4, that is 4. R is equal to 4. Okay, we got the r first. आर आ चुका है हमारे पास, 38 का आंसर आ गया. और ये एन भी पूछ रहा है हमसे, तो एन हम किसी भी वैल्यू में निकाल डाल के सकते हैं, जैसे कि एन इज इक्वल टू 3r प्लस 3r प्लस 2, तो 3 4 12 प्लस 2, दैट इज 14. r is 14. What is the value of p and r upon c and r? So that is very easy. npr upon ncr, it is equal to n factorial by n minus r factorial by n factorial by r factorial into n minus r. What's left, it is equal to r factorial. R factorial and r is 4, that is 4 factorial, and 4 factorial is what? 24. Okay, question number 40.
इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। तो इसको सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 3 tan square x is equal to 1 is given by, तो tan x is equal to plus minus 1 by root 3. Okay, so we have to find the value of this 1 plus 1 by root 3. 1 by root 3 is 1 by root 3 कब आती है वैल्यू tan x की? tan x की वैल्यू 1 by root 3 आती है कब आती है जी? 30 डिग्री पर आती है। 30 डिग्री 30 degree is pi by 6. Okay, and the value of tan x repeats after n pi. तो हम जब इसका सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? इसका सोल्यूशन होगा tan x x will be equal to n pi plus minus pi by 6. Answer would be, so that's it for today guys। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, 40 क्वेश्चंस, एंड द नेक्स्ट सोल्यूशन पार्ट विल बी कमिंग बैक। तो अगर कहीं भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, एंड द पीडीएफ ऑफ दिस presentation will be given in the description box. Don't forget to like and subscribe if you haven't done it yet, and we will meet in the next video. Till then, bye.